आवाज आ रही यस है? सर। लिंक पता नहीं। यस सर। अच्छा, ये लिंक से भी छुटकारा पाने वाले हैं। तो देखिए, x1 y1 x2 y2 p is a point which divides internally in this to m is to n. What will be coordinate of p, x and y? Remember the trick. mx2 nx1 divided by m plus n. m plus n. And y? Should m है y2 plus n y1 upon m plus 1. very good, ny1. Remember this formula. Point number 4 का formula. Remember this formula. Section formula. Remember. Special cases. If P is midpoint, P is midpoint, मिड पॉइंट हाँ x बराबर x2 plus x1 by 2 है ना सर मिड पॉइंट x1 y1 x2 y2. P is a point exactly at center. These distances are equal. M is to n is center. M is equal to n. M is equal to n. P is center means M is equal to. ये दो है तो ये भी दो इक्वल पार्ट. X here mx2, n is also mx x1 by m plus m. M will be common. x2 plus x1 divided by 2m. Or you can simply say x1 plus x2 by 2. Y is equal to this y my2. N is also m n is also m equal y2 plus y1 by 2. M will cancel out. This formula of P, इसको याद कर लो. x1 plus x2 by 2, x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2, x1 plus x2 by 2, y1 plus coordinate of midpoint. Write down one end of a diameter of a circle is at 2 3 and the center, try to solve yourself, and the center -2 5.
other end of the diameter. Try to solve yourself. ओके सर। बनाइए, बना के बताइए, आंसर बताइए। सर -2,5 है ना सर? यस, -2,5, सॉरी, -2,5, दिस इज कॉमा। सर पहला वाला 2,3। हाँ जी, -2,5, 2,3 and -2. आंसर बताइए आप लोग जल्दी फटाफट। तो इसी फॉर्मूले से करेंगे ना, सेक्शन वाले मिड पॉइंट वाले से। आप जैसे बनाइए, आंसर बताइए। सर 0,4। 0 and 4, देखिए एक आंसर 0,4 आ रहा है, देख ले। One end of the diameter passes through center of the circle. One end is given 2,3. One end coordinate is given 2,3. Center -2,5. Other end coordinate means we have to find coordinate of other end, x, y. We can say AB is a line segment. This diameter is line segment. O center, O is the midpoint. Using midpoint formula, O divides in equal part. O is the center means equal part. Internally origin divides internally AB in ratio m:n, where m and n are equal, means O is midpoint. Two plus x, 2 plus x1 plus x2 by 2 is equal to -2. x1 plus x2 is equal to this. -6. y1 plus y2 by 2 is equal to 5. 3 plus y by 2 is equal to 5.
ऐसे होगा, ये गलत हो गया। ओके गुड, आपने ट्राई तो किया कम से कम। देखो भाई, क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, क्वेश्चन टीचर बनाता है तो टीचर सीखता है, क्वेश्चन अपने आप बनाना चाहिए, ये बात सुन लीजिए। इसलिए मेरा मैक्सिमम प्रयास रहता है कि मैं क्लास में कराता हूँ, क्वेश्चन मैं कराता हूँ, क्वेश्चन मैं बनाता नहीं, बनवाता हूँ। आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिए। आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं, अपने आप बनाइए तभी समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which trisect the line segment joining the points. One minus two and minus three. Solution. सर एक बार क्वेश्चन रीड कर दीजिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट। Find the coordinates of the points which trisect. Trisect means three equal part. The line segment joining the points. This is the line segment joining the points. बताइए, आंसर बताइए, जल्दी बताइए थोड़ा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच ट्राइसेक्ट। ठीक है, ड्रॉ कीजिए, पहले ड्रॉ कीजिए। 1 minus 2 3 minus 4 ड्रॉ कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझिए, लैंग्वेज प्रॉब्लम है ना ये। आई हैव ऑलरेडी सेड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज वन ऑफ द इजीएस्ट, है ना। लेकिन ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ, ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ क्वेश्चंस। हेमा, कितने आंसर है? हमारा x का -1 आ रहा है, y को निकालने। अच्छा, x का -1, आई एम राइटिंग। एक आंसर आ रहा है -1 एंड y बताइए। सर -1 and 1। -1 एंड 1 देखिए ना। अब मैं सॉल्व कर देता हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे बनाता हूँ मैं। Coordinates of the points which trisect the line segment joining point this. -3 4 1 -2। देखिए, ये लाइन को तीन ट्राइसेक्ट कीजिए ना, तीन इक्वल पार्ट, पी एंड क्यू। पी का कोऑर्डिनेट निकालिए, क्यू का निकालिए। पी का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 y1 है,
Q का x2 y2। देखिए P का निकालिएगा, इधर एक पार्ट बचेगा, इधर कितना, दो पार्ट। P डिवाइड्स 3 इक्वल पार्ट है ना, 1 2 3। P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली इन रेशियो 1:2 है ना। Q के पूछेगा, Q डिवाइड्स ए बी इन रेशियो 2:1। P डिवाइड्स ए बी इंटरनली 1:2 में। M हो गया 1, N हो गया 2। P का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, mx2 1 - 3 1 × -3 प्लस nx1 2 × 1 2 × 1 डिवाइड बाई 1 + 2 1 + 2। सिमिलरली y1 1 × 4 प्लस 2 × -2 डिवाइड 1 + 2। x1 is equal to -1/3 प्लस 2 - 3 -1 आएगा, एंड y1 is equal to 0/3। x1 y1 is equal to -1/3 and 0। Similarly for Q, similarly trisect कर रहा है, there are 2 points possible in this line AB, line segment AB। Similarly Q divides AB in ratio x2 y2, A 1 - 2 B -3 4 A 2 1। x2 is equal to 2 × -3 mx2 plus nx1 1 × 1 by m plus n 2 + 1 -5/3। Similarly y2 2 × 4 plus 1 × -2 by 2 + 1 -6/3 -2। Coordinate of Q -5/3 -2। राइट डाउन, ये आ गया। P का कोऑर्डिनेट ये आया था, P का था, P का लिख लीजिए। -1 आंसर दिया है, -1/3 0 -5/3 एंड +2 +2 और ये 8 - 2 6/3 +2 लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है हम, कोई दिक्कत है पूछिए। सर ये इसमें ये प्रॉब्लम हो रही है कि डिवाइड ट्राइसेक्ट, अगर कोई यहीं पर ही मेन प्रॉब्लम है कि ट्राइसेक्ट बोलेगा या इक्वल बोलेगा, तो हम कैसे कैसे टेस्ट कर हाँ सकते हाँ, नहीं नहीं, अब यही 2-4 चीज है, और पांचवा चीज तो नहीं है भाई, है ना। हैं? यही 2-4 चीज है, अलग चीज तो नहीं है। ट्राइसेक्ट हम इसलिए डिफरेंट टाइप बता दिए ना। बाइसेक्ट तो बता दिए ना, क्या होता है, बाइसेक्ट बता दिए इक्वल पार्ट आपने, हाँ। बाइसेक्ट तो बता दिए इक्वल पार्ट, इक्वल हो गई। अब ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि ट्राइसेक्ट वाला पूछ सकता है, तो पूछ भी दिया क्वेश्चन, इसलिए ये भी बता दिया कि बाइसेक्ट करेगा तो एक ही पॉइंट तो होगा, बाइसेक्ट करने वाला आधा आधा करेगा। अब ये भी है, ट्राइसेक्ट करेगा या बोलेगा 4 इक्वल पार्ट में कर रहा है, ए बी लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स इसमें जो 4 इक्वल पार्ट में कर रहा है। 4 इक्वल पार्ट में करने के लिए पी क्यू आर 3 पॉइंट्स होगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट
which divides line segment AP in 4 equal part. ट्राइसेक्ट इसको तो 4 equal part ही बोलेगा ना, उसको फोरसेक्ट थोड़ी बोलेगा, ट्राइसेक्ट इसको बोलते हैं, 4 equal part में बोलेगा, मतलब ये पार्ट, ए पार्ट, ए पार्ट, ए पार्ट। ए और बी का कोऑर्डिनेट देगा, 1 2 मान लो, इसका मान लो कोऑर्डिनेट 3 4। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, इसमें 3 पॉइंट पॉसिबल होगा जो इसको 4 equal part में पड़ेगा। पी के निकालने के लिए क्या करोगे, इसको 1 लोगे तो इसको क्या लोगे, 3 लोगे। 1 4 equal part है ना, एक पार्ट, एक पार्ट, एक पार्ट, एक पार्ट, 4 पार्ट है। इधर एक पार्ट है, रेशियो है, एक पार्ट, इधर 3 पार्ट है, इधर एक है तो तिगुना है। एम इसके लिए पी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एम 1 है, एन 3 है। क्यू को निकालने के लिए बोलेगा तो क्या, इधर 2 पार्ट आ जाएगा और इधर भी 2 पार्ट, मतलब क्यू इज द मिड पॉइंट आई थिंक, यस सर। है ना। आर के निकालने बोलेगा तो फिर सिमिलरली इधर 3 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं तो समझ? सर जैसे कि पी पॉइंट लेंगे तो हम एम जो है 1 लेंगे और हाँ, क्या एन क्या लेंगे क्या एक मिनट सर? बताइए। ए एंड क्यू में जैसे पी के पॉइंट निकालेंगे तो पी के पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या क्या मेन लेने पड़ेंगे? ए और आर लेने पड़ेंगे, ए एंड क्यू लेने पड़ेंगे ना, ए एंड क्यू पॉइंट। मैं बता दे रहा हूँ, ए और बी पॉइंट तो हमेशा वही रहेंगे जो मेन है। ए जैसे एंड क्या, बी लेने पड़ेंगे ना। नहीं बताइए क्या बोला आपने मैडम, फिर से बताइए। मैंने सर ये कहा ना कि मेन मेन ओरली बता दिए सर, जैसे पी के पॉइंट लेंगे तो हमें मेन मेन पॉइंट क्या लेने पड़ेंगे, जैसे ए एंड एक बी से मिनट, ही डिवाइड करना पड़ेगा ना। 4 पार्ट में बांट कर रहा है पी हाँ, 4 पॉइंट में डिवाइड हो गया सर। आर। तो बताइए आप, एक ए और बी का इसे निकाल ही लीजिए क्वेश्चन, मान लीजिए कि इसका 1 2 दिया हुआ है, इसका दिया है 3 4, ये क्वेश्चन है। पी को किस हाँ, ऐसे कोई नहीं सर, ओरली बता दीजिए, बस ये बताइए जैसे पी मैं के पॉइंट निकालने पड़ेंगे, आपने एक चीज बताइए, में क्यू डिवाइड। क्यू के तो निकाल लीजिएगा ना, क्यू तो मिड पॉइंट है, यस सर। अच्छा, यस सर। यस क्यू के तो मिड पॉइंट सर में होगा। निकाल लीजिएगा ना। 2 2 में हो जाएगा, वो x1 दोनों को जोड़ के बाई 2 हो जाएगा, टू सही टू है। हो जाएगा ना, ये भी 2 पार्ट, इधर भी 2 पार्ट, मतलब एम एन या एम एक्स 2 मत लगाइए ना, मिड पॉइंट है तो। सर सीधे ही डायरेक्टली x2 और हाँ y2 डायरेक्टली लगा लगाएंगे, दें। डायरेक्ट लगाते हैं, x1 + x2/2। आप किसका बाई 2। निकालना चाहे, आर का या पी का पॉइंट बताइए। हाँ, पी के कैसे निकालें? इसका पी का, पी का कैसे निकालें, मतलब इनको ऑरली बता दीजिए कि पी के निकालने के लिए हमें मेन मेन क्या क्या चाहिए होंगे, जैसे ए कौन से रेशियो चाहिए होगा, कौन सा ये चाहिए होगा, m/n, ओरली सर। ओरली बता दे हाँ रहा हूँ, ओरली बता रहा हूँ, हाँ, x1 y1 के रूप में ही बता दीजिए। हाँ सर। हाँ पी बता के दे रहा लिए सर मैं सर एक बार मैं बताऊं, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? हूँ, मैं पूछ रहा हूँ मुझे तब। हाँ ओरली बता दीजिए, ये इसका ये है, पी का निकालना चाहते हैं तो बताइए पी का कैसे निकालेंगे, ये दिया। सर पी के लिए m1 होगा और n3 होगा। गुड, क्योंकि m = 1 होगा और n = कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि इधर 3 पार्ट है, 1 2 पी 3, लेंगे है ना, तीन लेंगे। लेंगे ए से ए बी में मानेंगे पूरा, यानी चाहे हाँ वो 3 पार्ट हाँ में A to B। ए एंड बी, ये है ओरल, मतलब हाँ ए हाँ एंड तो बी से ही करना है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो समझ में नहीं आया सर। ये x1 तो और है, कोई पॉइंट हमें दिए ही नहीं है तो कैसे करोगे? x2 y2 यही तो दिया हुआ है, x1 y1 x2 y2, m और n पता हो गया तो निकाल दीजिए x y, mx2 mx2 ऐसे nx1 ऐसे निकाल दीजिए, निकल जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो बन, ये अकॉर्डिंग निकाला, अब सही मैं है। क्वेश्चन भेजूंगा सर ना, आप बताइए। सर आप क्वेश्चन शेयर कर दीजिएगा सर। क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, बनाइए क्वेश्चन, मैं क्लास में, आप लोग घर में पढ़ो मत पढ़ो, यहाँ क्वेश्चन बनाओ। यहाँ क्वेश्चन इसलिए मैं बनवाता हूँ कि आप यदि क्वेश्चन बना लोगे तो आपका हो जाएगा, मैं बनाऊंगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी। सर घर में बनाएंगे तो सर और प्रैक्टिस हो जाएगी। सर आप शेयर कर दीजिएगा। हाँ क्वेश्चन घर में भेजूंगा। To find the coordinates of the point which divides externally line segment two given points, two given points.
in a given ratio m/n m/n. Y-axis, x-axis. Coordinate of this point and these points are given. Coordinate लिख लो. x1 y1 a b x2 y2. This point P divides line segment AB. बोलो ये डिवाइड कैसे कर रहा है? बीच में तो है नहीं, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है बाहर. On the side of B, extended मतलब बढ़ाया हुआ साइड में x y. We have to find the coordinate of P x. Yes, sir. x1 y1 means this x1 y1. x2 means this distance is x2 from origin, height y2. xy means this distance x from origin and height y. This height y. This y2, y1 up to here. देखिए ट्रायंगल PQR, similar triangle. Similar APR and APR and BPQ. बताइए APR में बताइए. AR इसका बेस बड़ा ट्रायंगल APR बड़ा ट्रायंगल है, उसका बेस ये छोटा ट्रायंगल है, इसका बेस BQ. -x1 ay का और बताइए इसका बेस PR इक्वल टू x माइनस x1. हाँ गुड. नहीं अभी PR डिवाइड बाई PQ. अच्छा वो डिवाइड करें AR अपॉन हाँ इसका हाइपोटेन्यूज बड़ा वाला हाइपोटेन्यूज क्या है AP, छोटा वाला हाइपोटेन्यूज क्या है BP. यार रख दीजिए. यार बताइए यार कितना है. यार बताइए यार कितना है. ये R x माइनस x1 है. यार का लेंथ कितना है. x है और x माइनस x1. गुड, वेरी गुड. x माइनस x1. आप BQ बताइए. आप बताइए भावना BQ. आप BQ बताएंगे. मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा. BQ बताइए भावना आप. अरे BQ कितना होगा. ये BQ इसके बराबर है. BQ और ये बराबर है ना. BQ इसके बराबर है. हम बताएं. नहीं भावना बताइए. भावना है. अरे सर x माइनस x2. शाबाश, बहुत अच्छा. x माइनस x2. सर मैं बताने में लगी हूँ और मैंने म्यूट किया है, मुझे पता ही नहीं. मैंने म्यूट नहीं किया हूँ. PR बताइए आप. PR बताइए आप. भावना आप ही बताइए PR. PR सर मुझे R ही नहीं दिख रहा. R है कहाँ. R यहाँ है. ओके सर. PR है ना. सर y माइनस y2. वेरी गुड, शाबाश. PQ बता दीजिए. PQ कहाँ है. PQ ये है छोटा वाला PQ. इतना छोटा है.
कुछ गलत बताया क्या? पी सर कुछ गलत लग रहा है मुझे भी। एक सेकंड, हाँ सही बता रहे, पी क्यू कितना होगा? हाँ आपने गलत बताया, वाई माइनस गलत बताए, वाई माइनस वाई टू नहीं होगा, सर आपने PR। पी आर होगा। ये पूरा हाइट कितना वाई है, अब ये कितना वाई वन, पूरा हाइट वाई था इसमें। Y-Y1 होगा सर। हाँ पी क्यू बताइए। और PQ होगा Y-Y2। ठीक है, एपी कितना दिया है एपी? अच्छा ये दिया है एम, एपी बाई एम, और बीपी कितना एन दिया है, एम एच टू एन है ना, एम एच टू। अब सॉल्व कीजिएगा, उसी प्रकार सॉल्व करेंगे, 1 2 and 3 फ्रॉम 1 and 2, 1 and 3 ले लीजिए, 1 and 3 ए और ए ले लीजिए, तो x माइनस एक्स वन डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स टू इज इक्वल टू एम बाई एन, एन एक्स माइनस एन एक्स वन, एम एक्स माइनस एम एक्स टू। एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन डिवाइड बाई एम माइनस एन एक्स एंड वाई, सिमिलरली वाई my2 minus ny1 by m minus n. Remember the formula, same formula, here negative sign, with negative sign, internal division plus external negative, same formula. remember कीजिए। line segment AB, y1 x2 y2, p कोऑर्डिनेट x एंड y, ये m हो गया पूरा, और इतना पार्ट n है, m is to n, AP बाई PB, कोऑर्डिनेट कितना होगा कैसे बताया था? एम एम है इतना, पी का कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू वही होगा तो एम एक्स टू ऐसे, हाँ सॉरी एम एक्स टू यहाँ पे, सर MX2 minus NX1। हाँ एम एक्स वन बाई एम माइनस एम, वाई इक्वल टू वाई टू माइनस एन वाई वन बाई एम माइनस एम। आप लोग देख लीजिएगा इंटरनल डिवीजन कैसा है, इंटरनल है एक्सटर्नल है क्या, देख लीजिएगा, है ना। इसका बाद फार्मूला लगा दीजिएगा, फार्मूला यही दो फार्मूला है, इसे बनता है। आप लोगों का 4th पॉइंट फिनिश हो गया, क्वेश्चन इस पे आएंगे, क्वेश्चन आप लोगों को मैं सेंड कर दूंगा, है ना। यस सर। ओके तो हम लोग और कंटिन्यू करेंगे इस पे क्वेश्चन में। हाँ बताइए सर क्लास सर 6 o'clock से ही करा दीजिएगा। ठीक है, 6 हो गया, 6 AM, ठीक है डन। ओके हैव अ नाइस डे। ओके थैंक यू सर। ओके।